اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہم عید کے دنوں میں تکبیر پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن اگر سمجھ آ جائے کہ اس کے شروع کے الفاظ حضرت جبرائیل کے ادا کیے ہوئے ہیں، اس کے درمیانی الفاظ حضرت ابراہیم کے ادا کیے ہوئے ہیں، اور اس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کے ادا کیے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، یہ کیسے مبارک الفاظ ہیں، اور یہ کس وقت ادا کیے گئے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی پیش کی جا رہی تھی۔ اللہ کرے کہ جب ہم یہ تکبیرات پڑھیں تو ہمارا دل بھی جھوم اٹھے، ہم بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں اس قربانی کو یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ ہمیں بھی تیری راہ میں قربانی کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ آئیے ذرا اس تصور میں ان تکبیرات کو پڑھیے تو صحیح، یاد رکھیے گا پہلے چند الفاظ جو ہیں جبریل امین نے ادا کیے ہیں، درمیانی الفاظ خلیل اللہ حضرت ابراہیم نے ادا کیے ہیں، اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل نے ادا کیے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا شاندار داستان ہے، کیا شاندار شخصیات ہیں۔ اللہ کرے کہ اس بار جب ہم قربانی کریں تو کاش ہماری آنکھوں میں آنسو بھی ہوں کہ اللہ تو نے ہم پر کتنی آسانی کی۔ کبھی امیجن تو کریں تو یہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ بڑے ایکٹیو دن گزرتے ہیں مسلمانوں کے، اور بالخصوص اگر میں کہوں تو پاکستان میں اس کا جو قربانی کا جو انداز اور جو رواج اور جس انداز سے ذوق و شوق سے قربانی کی جاتی ہے اس کی بات ہی نرالی ہے۔ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا عجب داستان ہے۔ یقین جانیے ناظرین، جب بھی اس داستان کو، جب بھی اس واقعے کو پڑھتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ایک باپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا جائے، آج ہمیں تو جانور ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ذرا سوچئے وہ کیسی قربانی مانگی گئی تھی، اور جب اس کا پس منظر آپ کے علم میں ہوگا، بلکہ ہمیں خود بھی اسے پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ آج ہم اپنے گھر میں بکرا یا بڑا جانور تو قربان کر رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کھانے پک رہے ہوتے ہیں، مگر اس کی لاجک ہم سب کو ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ اور وہ ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام، اس خاندان کی ایسی داستان ہے کہ جب بھی سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم قربانی کرتے وقت ہمیں جس دعا کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب قربانی ہو تو قربانی کرتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے، ون آف دا امیزنگ دعا، یقین کریں اس دعا کا جب ترجمہ آپ کو یاد ہوگا تو آپ جب قربانی کرتے وقت بھی یہ دعا پڑھیں، بلکہ میرا تو مشورہ ہے ویسے بھی اس دعا کو پڑھتے رہا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس دعا کا مصداق بنا دے۔ ذرا اس دعا کا پہلے دعا سنیے گا، پھر اس کا معنی سنیے گا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس کا ترجمہ سنیے۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں نہیں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے ایسے بن جائیں کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری قربانی، ہمارا سب کچھ ہو تو وہ فقط رب تعالیٰ کے لیے ہو۔ آگے فرمایا اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہے اور میں مسلمانوں میں ہوں۔ اے اللہ عز و جل، تیری ہی لیے اور تیری ہوئی توفیق سے اللہ کے نام سے شروع، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دعا میں تو ہم پڑھتے ہیں کہ میرا سب کچھ رب کا ہے، مگر کیا پریکٹیکلی ایسا کرتے ہیں؟ آئیے چلتے ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ یقین جانیے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت تو ہم سب نے ضرور پڑھنی چاہیے، مگر اس کے علاوہ بھی ہمیں انبیاء کرام کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ اور یہاں میں مشورہ دوں گا کہ ان دنوں میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو آپ پڑھیں۔ سبحان اللہ، ہمیں
मकतबतुल मदीना ने एक बड़ी प्यारी किताब भी अता फरमा दी है। अंबिया की सीरत पर हमारे लिए सीरतुल अंबिया जो किताब है, मुफ्ती कासिम साहब ने जो किताब लिखी है, अमेजिंग बुक है, और उसमें अंबिया की सीरत बड़े शानदार अंदाज में बयान हुई है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो क्या बात है, आप ही वो हस्ती हैं जिनकी यादगार हज के अरकान भी हैं और कुर्बानी भी आप ही की याद में की जाती है। गोया कहा जा सकता है कि इस्लामिक बहुत सारे फराइज और एक्टिविटीज में आपका सुभान अल्लाह आपकी याद बनाई जाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आपके फजाइल किस कदर शानदार हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा अफजल अगर कोई हस्ती कायनात में है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाद में आने वाले सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। अल्लाह अकबर। हर दीन में आपकी ताजीम की जाती है, आप ही की याद कुर्बानी है, आप ही की यादगार अरकान हज हैं, आप ही काबा शरीफ की पहली तामीर करने वाले यानी उसको घर की शक्ल में बनाने वाले हैं। जिस पत्थर पर खड़े होकर आपने काबा मुशर्रफा की तामीर की, वहां क़याम और सजदे होने लगे, मकाम इब्राहीम वो करार पाया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों के फौत हो जाने वाले बच्चों की आप अलैहिस्सलाम और आपकी ज़ौजा हजरत सारा रदी अल्लाह तआला अन्हा आलम बरज़ख में परवरिश करते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुछ ऐसे काम भी हैं जो आप ही से स्टार्ट हुए। लोग इन्वेंशंस पर बातें करते हैं कि फलां चीज फलां ने इजाद की है, फलां चीज फलां की वजह से शुरू हुई है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी कई कामों की इब्तिदा हुई है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम के बाल ही सफेद हुए, उससे पहले बाल सफेद नहीं होते थे। सबसे पहले आप ही ने सफेद बालों पर मेहंदी और कतम यानी नील के पत्तों का खिजाब लगाया। सबसे पहले आप ही ने सिला हुआ पजामा पहना। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर खुतबा पढ़ा। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने राह खुदा में जिहाद किया। सबसे पहले मेहमान नवाजी की रस्म भी आपने शुरू की। और सुभान अल्लाह, ये जो हम गले मिलते हैं ना, मुआनका करना कहलाता है। ये मुआनका भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही सबसे पहले शुरू किया। और खाना जो सरीद कहलाता है, जो शोरबे के अंदर रोटी वगैरह डाल के मिला के जो खाया जाता है, ये भी सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तैयार किया। मेहमान नवाजी का आपका आलम यह था कि आपके दस्तरखान पर रोजाना कोई ना कोई मेहमान हुआ करता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर लाइफ को थॉरली देखें, गौर से देखें, तो आपकी जिंदगी में बड़े पेचो खम आए। आपके वाकयात कितने सारे कुरान में मौजूद हैं। अभी 17-18 साल की उम्र है आपकी, जवानी का दौर है, और वो वक्त आ गया कि जब नमरूद ने एक ऐसी आग लगाई। उसका रीजन बिहाइंड कुछ और था कि जब आपने उनके बातिलान जो झूठे खुदा थे उनको मानने से इनकार किया, तो अब आपको जलाने के प्लान कर लिया गया। मगर उस आग में जब आपको डाला गया तो आपके तवक्कुल का आलम, आपकी अल्लाह पर भरोसे का आलम क्या था। और सुभान अल्लाह, फिर रब के हुक्म से वो आग गुलजार बना दी गई। आप ही का वो वाकया मशहूर है कि जो ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, मेरे नाज़रीन एक बात याद कीजिएगा, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम को किस तरह मिले थे। आप जरा गौर कीजिए, 99 ईयर्स की एज में, हाँ 99 साल की उम्र में आपको अल्लाह करीम ने बेटा अता फरमाया। और आप जबरदस्त अल्लाह की बारगाह में बार बार दुआ करते, बड़ी इल्तिजा के साथ। और आप क्या कहा करते? इस्मा या ईल, इस्मा या ईल। इस्मा अरबी का लफ्ज है, ईल इब्रानी जबान का लफ्ज है। आप दुआ करते, इस्मा के माना है सुन ले, ईल के माना है ए परवरदिगार, यानी आप दुआ करते ए परवरदिगार मेरी सुन ले, मुझे औलाद अता कर दे। 99 साल की उम्र में आपको बेटा अता किया गया, आपने उसका नाम ही इस्माइल रख दिया। अब इस्माइल नाम रखने की ये वजह बनी। मैं थोड़ा सा यहाँ रुकता हूँ और एक बात समझना चाहता हूँ, आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब भी आप नाम लेते हैं, एक और वस्फ, एक और लकब आप साथ कहते हैं, खलीलुल्लाह, यानी अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह का दोस्त भी है। 99 साल की उम्र तक दुआ हो रही है और अल्लाह करीम ने 99 साल की उम्र के बाद उनको बेटा अता फरमाया। जरा गौर कीजिए, मगर जबान पर शिकवा नहीं है, कंप्लेन नहीं है कि ए अल्लाह इतने साल हो गए तुझसे मांग रहा हूं, मैं तो तेरा नबी भी हूं, तेरा खलील भी हूं। सब्र है, अल्लाह की रिजा पर राजी हैं। आज हमारा कोई काम अटक जाए, कोई काम फंस जाए और हम दुआ करें और वो काम ना हो, हम किसी बुजुर्ग से दुआ कराएं वो काम ना हो, या जनाब हरमैन जाकर भी दुआ कर लें, बंदे कहते हैं यार
बार इतनी जगहों पर दुआ करवाई, इतने लोगों से दुआ करवाई, मेरा काम ही नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सीरत इब्राहिमी में हमें ये बात भी सीखने को मिलती है कि तवक्कुल करना है, भरोसा करना है तो अपने रब पर कैसे करना है। अगर मेरा रब नहीं दे रहा तो हमें इस बात पर यकीन रखना है कि यही मेरे लिए बेहतर होगा। हमारी वालिदैन, हमारे बुजुर्ग, हमारा ये अकीदा ईमान होता है, हम उनके बारे में सोच बैठते हैं कि अगर मेरे वालिदैन ने मेरे लिए कोई फैसला करना है तो बेहतरीन करना है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे बताओ ना, मेरे वालिदैन के दिल में प्यार डालने वाला, मेरे वालिदैन के दिल में मेरे लिए शफकत डालने वाला रब अगर कोई फैसला फरमा रहा है तो यकीनन मेरे लिए बेहतर होगा। तो बाज़ औक़ात हमें लग रहा होता है कि हम मांग रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, मगर वो काम नहीं हो रहा होता। हमारा काम अल्लाह के उस फैसले पर इत्मीनान भी रखना है, यकीन भी रखना है। हाँ, उसे पुकारे जाएं, इल्तिजा करते जाएं। बाज़ औक़ात तो किसी का मांगना पसंद आ रहा होता है, इसलिए भी ताखीर की जा रही होती है। तो बहरहाल अब हजरत इस्माइल 99 साल की उम्र में अता हुए। अब जरा सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं जिनके यहाँ 10-15 साल के बाद औलाद हो, वो कितना बच्चे का केयर करते हैं, कितना प्यार से रखते हैं। वो मुहावरतन कहते हैं ना, उसका पैर जमीन पर ही लगने देते कि बड़ी दुआओं से, बड़ी मन्नतों से मिला है, और ये बच्चा तो अभी चंद दिनों का है, अभी दूध पीता बच्चा है, और आपको हुक्म होता है कि उनको मक्का पाक में, जहां काबे की तामीर अभी बाद में होनी है, वहां उन्हें छोड़कर आ जाएं। अल्लाह अकबर। जरा सोचें, ना पानी है, ना आबादी है, आपकी ज़ौजा बीबी हाजरा हैं और हजरत इस्माइल हैं। ये कैसी कुर्बानी है, ये अल्लाह की रिजा पर कैसा राजी रहना है कि वो बच्चा जिसे दुआओं से पाया है, उस लकोदक सहरा में आप छोड़कर आ गए। और सुभान अल्लाह, अब आपके कदमों से वो जमजम जारी होना, वो बीबी हाजरा का सफा और मरवा के दरमियान उस प्यासे बच्चे के लिए पानी को ढूंढना, अल्लाह को ये अदाएं कैसी पसंद आई कि रहती दुनिया के लिए सफा मरवा की सई जो है वो हाजियों के लिए लाजमी करार दे दी गई। उम्रा कंप्लीट नहीं होता जब तक सफा मरवा की सई ना की जाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये अजब खानदान है, ये कैसी दास्तान है कि अपने बच्चे को वहां छोड़कर आ गए, और फिर कुछ अरसे के बाद जब वहां जाते हैं तो अब सुनिए क्या होता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र एक रिवायत के मुताबिक 7 साल थी, या एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र 13 साल या कुछ उससे ज्यादा थी। 8 जुल्हिज्जा की रात है, 8वीं शब है, और हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हें अपने बेटे को ज़िबह करने का हुक्म देता है। आप सुबह शाम गौर करते रहे कि ये अल्लाह की तरफ से ख्वाब है या शैतान की तरफ से। अब सोच विचार में ये दिन गुजराना, तो यौमुत तरविया इस दिन का नाम पड़ गया, यानी सोच विचार का दिन। आज बहुत सारे हाजी जब जाते हैं मक्के मदीने तो उन्हें पता है कि 8 तारीख को यौमुत तरविया कहा जाता है, 9 तारीख को यौमुल अरफा कहा जाता है, और 10 तारीख को यौमुन नहर कहा जाता है। मगर इसके पीछे रीजंस क्या है, ये नाम क्यों पड़े? तो यौमुत तरविया सोच विचार का दिन। आप पूरा दिन सोचते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है या शैतान की तरफ से। अगली रात आ गई, 9 जुल्हिज्जा की रात आ गई, फिर वही ख्वाब देखा। सुबह यकीन कर लिया ये ख्वाब मेरे रब की तरफ से है, ये हुक्म मुझे रब ने दिया है, इसलिए यौमुल अरफा इस दिन का नाम पड़ गया, पहचान का दिन, कंफर्मेशन हो गई आपकी। और फिर सुभान अल्लाह 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखा, तो अब आपने सुबह इस ख्वाब पर अमल करने की नियत कर ली। तो इसलिए 10 जुल्हिज्जा का दिन यौमुन नहर कहा जाता है, यानी ज़िबाह का दिन। तो ये 3 नाम पढ़ने की वजह यह है। अब जरा सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस बच्चे को दुआओं से, इल्तिजाओं से पाया है, अब रब का हुक्म है उसे कुर्बान करना है। अल्लाह की रिजा पर यह खानदान कैसा राजी है। आपने क्या किया कि आप अपने बेटे को, जिनकी उम्र 7 साल या एक रिवायत के मुताबिक 13 साल या उससे कुछ जायद है, अब आप लेकर चलते हैं। कहां लेकर चलते हैं? ज़िबाह करने के लिए। अब शैतान एक जान पहचान वाले शख्स की सूरत में जाहिर होता है और कहता है, इब्राहिम कहां जा रहे हो? आपने फरमाया, काम से जा रहा हूं। उसने पूछा, क्या आप इस्माइल को ज़िबाह करने जा रहे हैं? तो आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि क्या तुमने किसी बाप को देखा है वो अपने बेटे को ज़िबाह करे? शैतान बोलता है, हाँ मैं देख रहा हूं, आप इसी काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको इस बात का हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इसकी फर्माबरदारी करूंगा। अब शैतान आपसे तो मायूस हो गया। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा के पास पहुंचा। माँ तो ज्यादा अटैच होती है ना बच्चे से, माँ के पास गए। कब आपको पता है आपके बेटे को हज़रत इब्राहिम लेकर कहाँ गए? कहा किसी काम से लेकर गए? कहा नहीं, वो इन्हें ज़िबाह करने लेकर गए। बीबी हाजरा ने कहा कि कभी तुमने किसी बाप को देखा है वो बेटे को ज़िबाह करे? तो शैतान कहता है कि हाँ, उनको अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसलिए वो उनको ज़िबाह करने जा रहे हैं। हाय हाय, जब माँ ने ये सुना ना कि रब का हुक्म है, आप कहती हैं अगर ऐसा है तो अल्लाह की फर्मा बरदारी करके उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, फिर बेटा कुर्बान है। अच्छा, अब दोनों जगह से मायूस हो गया शैतान। तो अब 7 साल की हजरत इस्माइल या एक रिवायत के मुताबिक 13 साल, कोई बड़ी उम्र नहीं है।
वो उनके पास आता है और कहता है कि आप पता है कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपके वालिद आपको ज़िबा करने ले जा रहे हैं। तो क्या खूबसूरत वो बेटा जवाब देता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म पर अगर मुझे ज़िबा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो लोग जिनसे थोड़ा वक्त कुर्बान नहीं होता, वो लोग जिनसे थोड़ा माल कुर्बान नहीं होता, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं दे पाते, ये पूरा खानदान तैयार है अल्लाह की राह में उस नौनिहाल को, उस चहीते बेटे को ज़िबा करने के लिए। अब जब शैतान बिल्कुल नाकाम हो गया ना, तो अब जमरे के पास आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते ने कहा कि इसे कंकरियां मारें। आपने उसे 7 कंकरियां मारी, शैतान हट गया। दूसरे जमरे के पास आया, फरिश्ते ने अर्ज की हुजूर दोबारा मारें, आपने दोबारा उसे 7 कंकरियां मारी। तीसरे जमरे के पास वो पहुंचा, हजरत इब्राहिम ने फरिश्ते के कहने पर फिर कंकरियां मारी। अभी तीनों मकामात पर जो हाजी जाके कंकरियां मारते हैं, जो वाजिब है हाजियों के लिए, मगर सोचिए आज हमें तो कहा गया कि जमरे को जाके कंकरी मारनी है, मगर वहां तो शैतान आया था, बहकाने आया था, अल्लाह की राह में इतनी बड़ी कुर्बानी देने से रोकने आया था। सुभान अल्लाह। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इस बेटे को लेकर कोहे सबीर पर पहुंचे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म की खबर दी। अब बेटे से भी बात कर ली है, डिक्लेयर कर दिया कि मैं किस लिए लाया हूं। सुभान अल्लाह। ये जो बातचीत है ना, ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये कुरान मजीद में किस शानदार अंदाज में मौजूद है। ये कैसा वालिद है, ये कैसे बेटे हैं, अल्लाह की रजा पर कैसे राजी रहने वाले हैं, ये कुर्बानी देने में किस कदर आगे हैं। सुभान अल्लाह। आप कहते हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा मैं तुझे ज़िबा करता हूं, अब तू देख तेरी क्या राय है। बेटे से सवाल ही कर लिया, राय पूछ ली। अब फर्मा बरदार बेटा है, जब उसने ये सुना तो जो जवाब दिया ना, आए हाय, उस जवाब को भी रब ने कुरान में बयान फरमाया। वो कहते हैं ऐ मेरे बाप कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है, खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर यानी सब्र करने वाला पाएंगे। आए हाय हाय। अब क्या हुआ, वो शायर कहते हैं ना, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से मजीद अर्ज की, अब्बू जान ज़िबा करने से पहले मुझे रस्सियों से जरा मजबूत बांध दीजिएगा ताकि मैं हिल ना सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी ना हो जाए, और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा रखिएगा ताकि उन्हें देखकर अम्मी जान जो है वो गमगीन ना हो। अच्छा बाबा जान जरा छुरी को ज्यादा तेज कर लीजिएगा मेरे गले पे ताकि अच्छी तरह चल जाए, मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो, गला फौरन कट जाए, क्योंकि मौत तो बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़िबा करने के लिए पेशानी के बल लिटा दीजिएगा, मेरा चेहरा नीचे कर दीजिएगा ताकि आपकी नजर मेरे चेहरे पर ना पड़े, और जब मेरी वालदा के पास जाए ना तो मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा, और हो सके तो मेरी कमीज, मेरा ये लिबास मेरी माँ को दे दीजिएगा, उनको कुछ तसल्ली हो जाएगी, सब्र आ जाएगा। क्या दुनिया ने ऐसा कोई मंजर देखा है कि ज़िबा होने वाला, ज़िबा करने वाले अपने वालिद से कह रहा है कि मुझे जरा जोर से बांध दीजिएगा, छुरी को तेज कर दीजिएगा, मेरे चेहरे को आप ना देखिएगा, मुझे उल्टा लिटा दीजिएगा। करना वही है जो रब का हुक्म है। एवरीबडी इज रेडी देयर। सोचिए ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कैसे अफराद थे, ये अल्लाह के कैसे बरगुज़ीदा बंदे और कैसे शख्सियात है। क्यों ना उनसे हम मोहब्बत करें और उनकी इस पूरी सीरत से सीखें। आज दुनिया भर में कुर्बानी तो हो रही है, लेकिन शायद ये फलसफा, ये दास्तान, ये कुर्बानी कैसी दास्तान रकम की गई और अल्लाह की कैसी रिजा हासिल की गई, हमें याद हो तो फिर हम उस पर कुछ अमल करने की कोशिश करें ना। अब क्या होता है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे तुम अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में मेरे कैसे उम्दा मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा उसी तरह उनको बांधा भी गया, छुरी को तेज भी किया गया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के पर लिटा दिया गया, उनके चेहरे से नजर हटा ली गई और उनके गले पर छुरी चला दी। हाय हाय है, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है, उन्होंने अपने जिम्मे का काम कर दिया ना, मगर छुरी ने अपना काम न किया, गला न कटा। उसी वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई और कुरान कहता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और हमने उसे निदा फरमाई कि ए इब्राहिम बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को, बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा ज़बीहा उसके फिदिये में देकर उसे बचा लिया। अब हुआ क्या मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बच्चे को लिटा दिया है, छुरी हाथ में है, और अब अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील बतौर फिदिया जन्नत से एक मेंढा लेकर तशरीफ लाए और दूर से ऊंची आवाज में आप कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी, आप तो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, जब आवाज सुनी तो अब
جب آواز سنی اور سر اٹھایا تو جان گئے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے آزمائش کا وقت گزر چکا، اب بیٹے کی جگہ فدیہ مینڈا بھیجا گیا ہے۔ تو خوش ہو کر آپ نے جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جو وہ بیٹا جو ذبح ہونے کے لیے نیچے لیٹا، انہوں نے سنا نا، تو انہوں نے جب کیا کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہم عید کے دنوں میں تکبیر پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن اگر سمجھ آ جائے کہ اس کے شروع کے الفاظ حضرت جبرائیل کے ادا کیے ہوئے ہیں، اس کے درمیانی الفاظ حضرت ابراہیم کے ادا کیے ہوئے ہیں، اور اس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کے ادا کیے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، یہ کیسے مبارک الفاظ ہیں، اور یہ کس وقت ادا کیے گئے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی پیش کی جا رہی تھی۔ اللہ کرے کہ جب ہم یہ تکبیرات پڑھیں تو ہمارا دل بھی جھوم اٹھے، ہم بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں اس قربانی کو یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ ہمیں بھی تیری راہ میں قربانی کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ آئیے ذرا اس تصور میں ان تکبیرات کو پڑھیے تو صحیح، یاد رکھیے گا پہلے چند الفاظ جو ہیں جبریل امین نے ادا کیے ہیں، درمیانی الفاظ خلیل اللہ حضرت ابراہیم نے ادا کیے ہیں، اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل نے ادا کیے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا شاندار داستان ہے، کیا شاندار شخصیات ہیں۔ اللہ کرے کہ اس بار جب ہم قربانی کریں تو کاش ہماری آنکھوں میں آنسو بھی ہوں کہ اللہ تو نے ہم پر کتنی آسانی کی۔ کبھی امیجن تو کریں اگر ہمیں یہ کہا جاتا کہ زندگی میں ایک بار سب اپنا اپنا ایک بچہ قربان کریں، آپ سوچیں کبھی ہم یہ کر سکے؟ ہم تو کتنے ناتوان ہیں، ہم پر کتنی آسانی کر دی گئی۔ انہوں نے تو قربان کر دیا تھا نا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب مل گیا، ذبح نہ ہوئے مگر ذبیح اللہ کا لقب ملا کیونکہ انہوں نے اپنا کام کر دیا تھا۔ اللہ نے وہ امتحان لیا اور اس کے بدلے پھر جنتی مینڈا عطا فرمایا۔ لیکن ہم پر تو یہ مشکل نہیں ہے، مگر افسوس یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کل لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے، استطاعت کے باوجود مال ہوتا ہے پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ کئی گھروں میں دیکھا کہ 10 افراد رہنے والے 1-2 بکرے لے آئے، بس سب کی قربانی ہو گئی۔ کیوں؟ آج مال خرچ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ اچھا کرتے ہیں تو بوجھ سمجھ کر، خوش دلی سے نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں تو یہ قربانی بہت خوش دلی کے ساتھ انجوائے کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے اس قابل بنایا۔ اور اللہ کریم پھر سنو اس قربانی کا جو اجر ہے، حدیث پاک سنے تو صحیح، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ٹھیک ہے، جانور میں کتنے بال ہوں گے؟ تو جتنے جانور کے بال ہیں گویا ملینز اینڈ ملینز، لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں قربانی کرنے والے کو، پھر کس بات کا غم ہے؟ اور سنیے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ اب اس میں کیا شرط ہے؟ اس میں خوبصورت بات کیا؟ خوش دلی، یعنی دل خوش ہو، بوجھ نہ فیل کرے یار سال پورا ہو گیا پھر خرچہ آ گیا پھر قربانی کرنی پڑے گی۔ نہیں، اللہ پاک تیری مہربانی انہیں زندہ رکھا، پھر یہ دن دکھائے اور مجھے اس قابل بھی کیا ہے کہ میں تیری راہ میں قربان کروں، اور پھر بندہ یہ توجہ کرے کہ مالک میں کیا، میری اوقات کیا، میرے پاس تو اخلاص بھی نہیں ہے، تو نہیں دیا تھا، تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، مہربانی تیری ہوگی جو تو قبول فرما لے۔ ہمیں تو اس بات اور پھر یہ قربانی یاد کریں کہ حضرت ابراہیم تو اپنے بچے کو قربان کرنے گئے تھے، مجھ سے تو اپنی خواہشات قربان نہیں ہوتی، بلکہ علماء نے بڑی پیاری پیاری نیت عطا فرمائی۔ ہم نے امیر اہل سنت سے سیکھا کہ قربانی کے وقت بندہ یہ سوچے اور یہ نیت کرے کہ آج میں اپنی بری خواہشات کی بھی قربانی کر رہا ہوں، اسے بھی ذبح کر رہا ہوں، آج میں گندی اور بری عادتوں کو بھی ذبح کر رہا ہوں، آج میں جب
माल कुर्बान करने की नीयत कर रहा हूं तो साथ अपना वक्त भी अब अल्लाह की राह में दूंगा, उसकी भी कुर्बानी देने की नीयत करें। और कभी जिंदगी में ऐसा मौका आए तो जान कुर्बान करने की भी बारी आए तो अल्लाह हमें उसमें भी कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह करे कि हम इस कुर्बानी के इस पूरे फलसफे को समझें और इस खुश दिली के साथ कुर्बानी करें। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए फातिमा अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। आए हाय, एक खून का पहला कतरा गिरना है कुर्बानी का, और कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो अल्लाह ने जिसको इस्तिताअत दी है इसमें जरा भी कंजूसी ना करें, बिल्कुल खुश दिली के साथ बेहतरीन जानवर। अच्छा, फिर अजीब अजीब बातें फैलाई जाती हैं, अजीब अजीब वसवसे, अरे जनाब इतना बेहतरीन जानवर करने की क्या जरूरत है, तो कुछ गरीबों की मदद कर दी जाए, कुर्बानी की जगह कुछ और कर दिया जाए, ये भी बातें आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, हर बकरा ईद में होता है, सोशल मीडिया पर बातें आ रही होती हैं कि यार हमने तो एक काम ये करना है कि इस बार कुर्बानी नहीं करेंगे, किसी गरीब का भला कर देंगे। पता नहीं कौन से लोग हैं जिनको हर बार जब भी मुसलमान अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की बारगाह में उसका हुक्म बजा लाने की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको कुछ न कुछ याद आना शुरू हो जाता है। ये हर बार होता है, चाहे वो हज हो, इतने हज करने की क्या जरूरत है, कुर्बानी करने की क्या जरूरत है, माद अल्लाह। अच्छा जनाब अच्छी अच्छी मस्जिदें बनाओ, उसमें भी इनको प्रॉब्लम हो जाता है। यानी जब भी इंसान दीने मतीन पर खर्च करने की, मुसलमान अल्लाह की राह में खर्च करने की बात करते हैं तो कुछ लोगों को टेंशन शुरू हो जाती है। आज तक कभी नहीं सुना कि जनाब इतने महंगे मोबाइल फोन लेने की क्या जरूरत है, किसी गरीब की मदद कर दें, लाखों करोड़ों रुपए शादी पर खर्च करने की क्या जरूरत है, किसी गरीब की मदद कर दें, ये आतिशबाजी न्यू ईयर पे करने की क्या जरूरत है। वहां कोई याद नहीं आएगा। आप देखिए, जब भी मुसलमान अल्लाह की राह में खर्च करने की बात करेंगे, किसी इस्लामी त्योहार या अल्लाह करीम की बारगाह में और अल्लाह वालों की याद में खर्च करने की बात करेंगे, तो एक्चुअली पेट में दर्द कुछ और होता है। वहां पर दीन से दूर करना है, अल्लाह वालों से दूर करना है, अल्लाह वालों की यादों से दूर करना है। तो हमें उन वसवसों में नहीं आना, बल्कि रिवायतों में यहां तक आता है कि कुर्बानी के दिनों में खून बहाने से अफजल अमल कोई और नहीं है। अल्लाह की बारगाह में अगर जानवर ज़िबा करना अफजल तरीन काम है तो इंशाअल्लाह हमने लब्बैक कहकर खुश दिली के साथ जानवर कुर्बान करना है। और जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि इस्तिताअत होते हुए भी, अफोर्ड करने वाले होते हुए भी जो कुर्बानी नहीं करते, उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। नबी पाक ने एक और हदीस पाक में फरमाया, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो वुसअत है तो जरूर कुर्बानी कीजिए। और सुभान अल्लाह, हमें अल्लाह करे कि हम कुर्बानी के इस फलसफे को समझें। और फिर जरा और आगे चलते हैं कि ये जो मेंढा था, जन्नती मेंढा तो था, उसका फिर क्या हुआ। सुभान अल्लाह, इसके बारे में भी तफसील किताबों में लिखी है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेंढा ज़िबा फरमाया, और बाज़ मुफस्सिरीन का कहना यह कि वो मेंढा जन्नत से आया था, और ये वही मेंढा था जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाबील ने कुर्बानी में पेश किया था। उस मेंढे का गोश्त पकाया नहीं गया, बल्कि उसे जानवरों और परिंदों ने खा लिया। सुभान अल्लाह, ये वो मेंढा था जो हजरत हाबील ने कुर्बानी में पेश किया था। ये अलग वाकया है और वो भी कुरानी वाकया है। अब इसी तरह जन्नती मेंढे के जो सींग थे ना, हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि इस मेंढे यानी दुम्बे के सींग अरसा दराज तक काबा शरीफ में रखे रहे, यहां तक कि जब काबा शरीफ में आग लगी, एक ऐसा भी वक्त आया था जब वहां आग लग गई थी तो वो सींग जल गए। वो ज़ायरीन उसका दीदार किया करते थे। अच्छा, यहां एक बड़ी अहम बात किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने अपने बड़े ही प्यारे रिसाले, जो मैं तकरीबन बयान कर रहा हूं ना, ये वो बहुत प्यारा रिसाला है, ये जरूर पढ़ा करें, इन दिनों में तो ज्यादा पढ़ा करें, और हो सके तो अपने बच्चों को भी पढ़कर सुनाएं। और इसका नाम है बेटा हो तो ऐसा। वाकई बेटा हो तो ऐसा, क्या बेटा है, क्या वालिद हैं, क्या वालदा हैं, ये खानदान ही निराला है। सुभान अल्लाह। तो अब क्या एक बड़ा अहम मसला है, क्योंकि हजरत इब्राहीम ने तो ख्वाब देखा था और ख्वाब देखकर आपने ये अमल किया, तो सवाल यह है कि क्या हर कोई ख्वाब देखकर अपना बेटा ज़िबा कर सकता है? सवाल तो बनता है ना। तो क्या खूबसूरत आपने इसकी तरबियत फरमाई कि याद रहे, कोई शख्स ख्वाब या गैबी आवाज की बुनियाद पर अपने बच्चे या किसी दूसरे के बच्चे या इंसान को ज़िबा नहीं कर सकता। करेगा तो सख्त गुनाहगार और अजाब जहन्नम का हकदार करार पाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो ख्वाब की बिना पर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, ये हक है, क्योंकि आप नबी हैं और नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। इन हजरात का इम्तिहान था।
हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नती दुम्बा ले आए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे की बजाय उस जन्नती दुम्बे को ज़िबा किया। तो सुभान अल्लाह, ये हमारी तरबियत के लिए एक शानदार वाक़या है। अल्लाह करे कि हम इस वाक़े से दर्स हासिल करें और मज़ीद अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ें तो फिर आप देखें कि जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो भी तो कुर्बानी थी ना, कि अपने दूध पीते बच्चे को वहाँ छोड़कर मक्का पाक जहाँ भी आबाद भी नहीं हुआ था आप वहाँ छोड़कर आ गए। खाने पीने का भी ज़्यादा सामान नहीं था। बीबी हाजरा एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक दौड़ती थी। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोगों के ज़हन में कभी कभी सवाल आता है कि हम सफ़ा मरवा के दरमियान जब सई करते हैं तो नॉर्मल चलते हैं और जब मैलैन अख्दरैन आ जाते हैं, ग्रीन लाइट्स आती हैं, तो हम दौड़ने लग जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो उलमा फरमाते हैं कि जब बीबी हाजरा माँ थी ना, आपके बेटे काबा शरीफ के पास बैठे हुए थे और प्यासे थे, तो आप चलते चलते अपने बेटे को देखती जाती, मगर उसके दरमियान एक बीच में छोटी सी पहाड़ी भी आती थी जिसमें बेटा नजर नहीं आता था। तो माँ की बेचैनी बढ़ जाती थी और आप उस जगह पर दौड़ती थी। जितने कदम आपने दौड़ कर तय किए हर चक्कर में, क्योंकि उस वक्त बच्चा नजर नहीं आता था। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह को उस माँ की अदा ऐसी पसंद आई कि अब मर्दों के लिए बाकी सफ़ा मरवा में तो नॉर्मल चलना है, मगर जब वो ग्रीन लाइट्स आती हैं, वो मकाम आता है जो अल्लाह की प्यारी बंदी दौड़ी थी अपने बच्चे नजर नहीं आ रहा था इसलिए और पानी की तलाश में, तो हमारे लिए ये दौड़ने का हुक्म है। अल्लाह करीम से हम दुआ करते हैं अल्लाह इस अजीम ख़ानदान की बरकत हमें अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सदक़े हमें भी अपनी राह में कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए।